Good morning to all my students. We are here to give tribute to our national freedom fighter who brought this country in an extreme position, and now we are in a position to realize our freedom. Freedom is very, very essential for any human being to survive. So first I would like to give you about the significance of Republic Day, since we are gathered here to celebrate 73rd Republic Day of this nation. What is the basic difference between Independence and Republic Day? The Independence Day, which we celebrate on 15th August. Independence Day means the Freedom Day, in which we released from the British Raj. When we got independence, when we got freedom from the British colonial Raj. But so far independence is concerned, the independence gives us assurance that whoever be in the position of the top leadership will be always elected by directly or indirectly by the citizen of this country. So it is a very proud moment for everyone that we are here to celebrate our 73rd Republic Day. And first I would like to, in the first part, I would like to invite some of the students to come here and give a speech regarding Republic Day, or you can give a speech on the contribution of our freedom fighters. So first I would like to invite Ms. Sittu to come here and give some speech regarding this auspicious day. Come here. So I would like to speak in English. So at first, good morning to all. This is 73rd Republic Day, and this is my second year of celebration of Republic Day. Before this year we celebrate very grand Republic Day, and due to COVID or climatic conditions, so we are not supposed to celebrate Republic Day in this year. So I would like, in every year I speak about freedom fighter and Republic Day, but in this day I would like to speak about those people who still fight for ourselves. Is only one army. So I would like to speak about army. So army has its own significance. Means we do not judge or we do not share our views on army, because army is only 4 words, 4 letters, but its significance is undefined. And when we go through the quality of army, so they have fearless, curious, and they are like a preventer. Means they prevent from the opposer. So I want to tell you something that that about army is means we. At last I want to tell you, please don't fear from the obstacle in life, and always fight against the obstacle which come in life. Thank you. Yes, language is no bar in today's class. तुम लोग जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हो यू कैन स्पीक. और चूँकि जानते हो कि भारत का ये एक त्यौहार है, और हम लोग अक्सर कल्चरल त्यौहार जितने भी होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल, हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, करेक्ट. मगर कल्चरल प्रोग्राम या स्टेट प्रोग्राम या रीजनल प्रोग्राम ये सबसे बढ़ के नेशनल प्रोग्राम होता है ना. ये सबसे इम्पोर्टेंट डेज है. 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, यूथ डे, ये सब ऐतिहासिक दिन है, इसको हम नहीं भूल सकते हैं.
हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट करें। मैं इस डे को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी डे हमारा पूरा संविधान लागू हुआ था। यही संविधान है जो कहता है कि एक इनफैक्ट विलेज में रहने वाले भी लोग, गांव में रहने वाले लोग भी पढ़ लिख के IAS बन सकते हैं। ये खासियत है इस किताब का। ऐसा कोई किताब नहीं है भारत में, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स पाए गए हैं, इतना इक्वालिटी का कहीं पे बात नहीं हुआ है। हम अभी उस विवाद में नहीं जाना चाहेंगे और ना ही पढ़ना चाहेंगे, मगर किंतु एक बात समझ में आना चाहिए सभी विद्यार्थी को कि जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, रियल मायने में वो भारत का संविधान ही है, और आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ऐसे तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि भारत का बहुत सारा प्रोविजंस, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, किंतु 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संविधान को लागू किया गया। इसके पीछे क्या रीजन है? जब 26 नवंबर को कर ही दिया गया तो 26 जनवरी को चुनने की क्या आवश्यकता है? इसका प्रमुख रीजन यही है क्योंकि हमने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज का सपना देखा था, लाहौर से सब। ये रीजन है। 26 जनवरी इंडियन हिस्ट्री के लिए एक सिग्निफिकेंट डे है, ऐतिहासिक दिवस है। इसलिए उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, उस डे को ट्रिब्यूट देने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर ने, हमारे जो देश के निर्माता है, जिन्होंने सपना देखा कि भारत कैसा हो तो जहां पे पूरा आज़ादी हो, इतने BPL कैटेगरी वाले लोग हैं, और कितना हमारा देश तो एक लंबा दौर से गुजरा है जी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगभग 80 से 85% परसेंटेज गरीब था यहाँ पे, और वहाँ से लेके अभी तक का जो जर्नी है, ये बहुत सुखद जर्नी है भारत के लिए, क्योंकि हमने कर दिखाया। ये जो 75 साल में हमने जो किया है वो अकल्पनीय है। कोई कहेगा कि सर चाइना ने इससे भी ज़्यादा अच्छा किया है, कह सकता है, कंपैरिजन कर सकता है, तो बिल्कुल चाइना हमसे बहुत आगे है बहुत सारे टर्म्स में, मगर जब बात होता है लोकतंत्र का और गणतंत्र का, इंडिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है दुनिया के लिए, कि जहाँ पे अभी भी लोग अपने वोट देके, अपने वोट से लोग चुनते हैं, और उसके हिसाब से लोकसभा में पहुँचता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। ये खासियत है कॉमन पीपल का। एंड थैंक्स टू देम, थैंक्स टू देयर विजन, उनका जो दृष्टि था, उनके दृष्टि की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, यदि इनइक्वलिटी रहता, तो कैसे हम उम्मीद करते कि एक रिक्शा वाला का बेटा भी एक IAS बन सकता है? ये तो संभव ही नहीं था, क्योंकि IAS मतलब होता है एलाइट क्लास। जो लोगों का परसेप्शन बना हुआ है कि IAS वही बन सकता है जो ऊपर तबके से आते हैं। अभी तो देखो गरीब वाला टायर को ठीक करने वाला विद्यार्थी सब, हाँ, ऐसे प्रोफेशन वाले लोग भी IAS बनते हैं। थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, कि जो आर्टिकल 14 देता है, आर्टिकल 15 देता है, 16 देता है, क्या नहीं देता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ऑल हैव फ्रीडम टू स्पीच। ये छोटी बात नहीं है बच्चे लोग, तुम लोगों को पता नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ, शर्त ये होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर। ऐसा कुछ भी नहीं बोल दे जिसके वजह से पब्लिक मोरालिटी का खतरे में आ जाए, पब्लिक ऑर्डर खतरे में आ जाए। और बोलने का आज़ादी भी मिला है तो कम है क्या? बहुत ज़्यादा है जी। अब बाकी कंट्री में देख लो, बाकी कंट्री में यदि तुम सरकार के विरोध में तुम बोल दिए कुछ, चले जाओगे अच्छे से। बट थैंक्स टू दिस ग्रेट नेशन, यहाँ पे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं सरकार को भी। तो ये अद्भुत चीज, और ये एक दिन में नहीं मिला है जी, इसके लिए एक संघर्ष चला है। और संघर्ष में जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हम गांधी जी का बात करें, चाहे BR अम्बेडकर साहब का बात करें, और तुम लोग हिस्ट्री को जानते हो अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट UPSC के भी बैठे हो यहाँ पे, एंड यू नो
about the contribution of freedom fighter in the path of Indian national movement. So it is a very, very important to understand the significance of the contribution whatever they made for this country. तो अब इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा मनीष को. मनीष, come here and give some speech about this 73rd Republic Day. Please come here. हमारे बीच आए हुए तमाम शिक्षकगण, हमारे सहपाठीगण को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बड़ी शुभ दिन है हमारे लिए, हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए। आज हमारा देश और हम सब 73वें गणतंत्र दिवस के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और कहा जाता है कि हर दिन के पीछे एक बड़ी कहानी एवं बड़ी एक दास्तानें छिपी होती है, जिसमें कि यह एक 26 जनवरी हमारे लिए बहुत बड़ी दिन है और इसके पीछे काफ़ी सारी तमाम कहानियाँ छुपे हैं, जो कि आज हम आप सभी के सामने समक्ष प्रकट करना चाहते हैं। 26 जनवरी कहने का मतलब हमारे देश के एक संपूर्ण एक नीति एवं स्वराज्य की गठन की गई है, जिसमें कि हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था एवं तमाम काफ़ी सारे मुद्दे को एक समक्ष करके सभी नागरिक के समक्ष प्रकट करने की एक नीति अपनाई गई, जो कि हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें कि कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के संविधान, जिन्हें कि संविधान का जनक भी कहा जाता है। और इस संवैधानिक नियम नीति के अनुसार हमारे देश के तमाम व्यक्ति को एक सामान्य भावनाओं से देखा जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि इस भारत जैसे अखंड और बहुत एक हमारे देश के विश्व के हम दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश में हैं, जिसमें कि हमारे देश में एक संवैधानिक और एक नीति से हम एक सरकार की गठन करते हैं, जो कि हमारे देश के ये एक हमारे संविधान के अंदर आता है, जिसमें कि हमारे देश के संविधान बहुत बड़े ही सफलताओं का एक स्वरूप माना जाता है देश में, जिसमें कि हम अपने नीति व्यवस्था हर चीज़ को एकत्रित करके समक्ष करके जिसकी कुछ विफलताओं को भी हम अपने दूसरे के सामने प्रकट करने की एक शक्ति जाहिर करते हैं, जिसमें कि देश का काफ़ी योगदान होता है और देश को सरल एवं सुदृढ़ बनाने के लिए एक नीति अपनाई जाती है। और इस संविधान को पारित होने के लिए काफ़ी सारे समय एवं काफ़ी सारे योगदानों की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि संविधान का गठन होने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गए थे संविधान को बनाने एवं इस चीज़ को। और इस देश का संविधान 26 नवंबर 1949 में ही पारित हो गई थी, लेकिन हमारे देश के तमाम महान हस्तियों का एक सोच था हमारा देश एक स्वराज एवं सबसे अलग हो, जिसके वजह से एक तिथि तय गई थी जो कि 26 जनवरी थी, जो कि उसे देखते हुए 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपने राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी के साथ हमारे देश के संविधान को पारित किया था। ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब एक जटिल एक समूह के साथ रहते हुए भी हमारे अंदर एक भाईचारा नीति एवं सारा चीज़, जिसमें कि और सभी देश को देखते हुए हम सभी देशों से बिल्कुल अलग होते हैं, जो कि यह एक संविधान का रूप है, जिससे कि हम एक लोकतांत्रिक देश होने का एक बहुत बड़ा भावनाएं होती है। और कहा जाता है कि हमारा देश लोकतंत्र की रास्ते पे सर्वप्रथम काफ़ी देशों से बहुत अलग है, जिसमें कि काफ़ी सारे नियम हमारे देश में एक छोटे वर्ग के
के भी चुनाव में भी जनता का सलाह लेना सर्वप्रिय माना गया है, जो कि हमारे देश के संविधान के अंदर और कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसमें ना कि धर्म, ना कि जाति, ना कि उसके अंदर की रंग भेदभाव जिसको देखा जाता है, ये भी हमारे देश के एक संवैधानिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस वजह से आज हम आप सबके सामने इस स्टेज पर आके आप सभी से अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं। ये भी एक संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ताकि हम एक दूसरे अपनी बातों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। ये भी एक संविधान का स्वरूप है और काफ़ी सारे बातें हैं जो कि इस संविधान ने हमारे लिए दिए। और कहा जाता है कि इस संविधान से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और इसे आज़ादी करने के लिए काफ़ी सारे समय लगे और काफ़ी सारे हस्तियों का बलिदान, जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है उन सभी हस्तियों का बलिदान, और वो सभी हमें सीखने का एक आभूति मिलती है उन सबों से, और योगदान भी मिलता है उन सभी का। इसलिए इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में न मानते हुए हमारे लिए एक बहुत बड़े दिन की एक उदाहरण है, और इस दिन के लिए काफ़ी सारे प्रेरणा और बहुत खूब मनीष, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब मैं मंच पे एक ही बार बुलाना चाहूँगा, आई मीन स्पीच दे दो, उसके बाद फिर से पीछे स्टूडेंट खुद ही आ जाए। सो मैं बताना चाहूँगा कि नाउ सुनील शुड कम, आफ्टर सुनील पिंटू, आफ्टर पिंटू करण, आफ्टर करण सौम्या। एंड वुड यू लाइक टू गिव स्पीच? यस, आफ्टर सौम्या Krishna, and after Krishna, Suman, you want to give a speech? Yes, come here. A very good morning to everyone. As we gather here, there is no need to introduce that why we are gathered here. Since today we are celebrating the 73rd Republic Day of our country, and just to get the Republic, it is not a single day history. If you trace the history of this day, we will find in 1929 when Jawaharlal Nehru went for the Lahore session. At that day, he proposed for the Purna Swaraj, and before that, Bal Gangadhar Tilak was just proposed for the Swaraj. And after that's why the 26th January is nominated for the Republic Day, when our constitution has made after putting lots of effort by our great leaders. On January 26, 1950, it has been proposed for our Republic Day. And before that, in 26 November 1949, some rules and some laws has been used. That's why. But at that day, the Republic Day was not proposed. But after 1 month, that is in November 26 January 1950, all the constitutional power and the rights of our rights in among the citizen is distributed. That's why we have celebrated. And also want to say that whatever as our earlier Mr. Student also said that army officers is serving our country. I want to say that even in this country, whoever is here, not only army, politician, and the one who is allied class, even from a single citizen, they all are putting their effort to make this country, directly or indirectly. So I want to say that हम लोग सब के बारे में पूरा कंट्री को हमने बनाया नहीं है, एक आदमी से पूरा कंट्री बना नहीं है। सो अगर हम लोग अपने आप पर भी ज़्यादा ध्यान दें तो कंट्री अपने आप ही बन जाएगा। सो वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटी, दैट्स a very basic thing. That's for student life. If student will study,
that's enough to manifest the real constitution. And lastly, I would like to say that perform your duty with integrated honesty, loyalty, and that will make our country more strong in upcoming future. Good morning to all. We are celebrating the 73rd Republic Day in this institution, and I give the speech of 23rd Republic Day. And in 23rd Republic Day, Republic Day means what? Where our government have our freedom fighter have established our constitution in this day, that is 26 January 1950. Our complete constitution of the was given by established by our freedom fighter, and in this day they replace the Government India Act into Constitution of India, and in this day the Constitution have given so many things, just like fundamental rights, DPSP, and it's also give the preamble, but it is not a part of Constitution. And in this day we are also tribute to our freedom fighter in give the hosting the flag and and it's and our Prime Minister have also hosting the flag in Delhi, New Delhi Red Fort, and it's near the Red Fort we are get the India Gate, and in this India Gate we have also Amar Jeevan. In this way, in this place we have remembered the freedom fighter of which we are contributing his life in this freedom. And in this Republic Day we have also all the school and institution of every and all the peoples have celebrating the Independence Day, and by his own effort, and in this day, and I want to say you that our Constitution have give the in this our Constitution have very rigged and lengthiest for other nation, that's all. Good morning everyone, and respect my teacher. In this day is 73rd Republic Day in our country, and 26th January 1950 establishment our country constitution, and today is Republic Day. Republic Day is a national holiday in India when the country marks and celebrate the date on which the Constitution of India come into effect on 26 January 1950. India's constitution is big all the world, and India's constitution given by the B. Ambedkar. This is in this day celebrate our national flag and tribute our freedom fighter, like the Mahatma Gandhi is national father of our country.
and this is a great man in this country. And this day is all people celebrate Republic Day in country, and in constitution equality, boy and girl and every people equality, and in constitution learn from the every survive on life, and thinking for the future, and that's thank you. Be ready, be ready. सुस्त तरीके से बैठना नहीं, ready रहो। अभी बोल दिया तो be ready। A very good morning to all. I am Soumya Kumari. In this day, we celebrate 73rd Republic Day. In this day, we celebrate as a festival. In this day, we can free from the Britishers, and also give a constitution. We can speak, and we can sit anywhere and everywhere. So this freedom also come from the constitution that given by Bhim Rao Ambedkar. And we also proud our freedom fighters that sacrifice their whole life because of freedoms, just like Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose. In modern days, also our Prime Minister inaugurate the statue of Subhash Chandra Bose that describe the respect our freedom fighters in a very well manner. And this day also we celebrate history of our India. In this day we can give fundamental rights, constitutional rights, and freedom to speak, and right and liberty also. And this day we all the schools and colleges this day celebrate very great as a very great day, and create a very great event for this day. And because we can say that to proud our freedom fighters to get to sacrifice their whole life because of our country in the modern days. Thank you. इतना सुस्ती से बैठे रहते हो, तेरी से निकल जाओ ना, आगे बैठो, आगे रखो, it's fine, मास्क खोलो। Good morning to all of you. आज रिपब्लिक डे विशेष कर रहे हैं हम लोग। आज भारत का 73वां गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और हम सबसे पहले अपने देश के माँ भारत को याद करना चाहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये जोश के साथ हम अपने उद्गार को व्यक्त करना चाहेंगे। और आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को हमारे देश के बहुत सारे वीर सपूत जो कि अपना जान तक निछावर कर दिए हैं, इस दिन हम लोग बहुत गर्व का दिन मानते हैं। इस दिन हम बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान का याद करते हुए हम लोग इस दिन को 26 नवंबर 1950 को आज का दिन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व का दिन है। और मेरा एक आज विशेष जो है मेरा वो संस्कृत का है, और इस संस्कृत का भाषण हम व्यक्त करना चाहेंगे आप सभी को।
स्वतंत्रता दिवस भारत गौरवान्वित दिवस। भारत अस्माकं देश ब्रिटिश साम्राज्य इज भारत कस अनेका सहस्राणि वर्ष गुलामा देश ब्रिटिश साम्राज्य बहुतानी अंग्रेज शासन ब्रिटिशस लुटान्ति गौरव देशस बहुत अन्याय देश चो ब्रिटिश अनेकानि देशस अनेकान प्रकानि चो भारत माता गौरवामी औरत महिला बच्चों बुजुर्गों चो देशस सर्व भारत बहुतानि पुरुष देश कुर्वन्ति। ख्रीष्टा समारोह देश अयम ही दिवसे भारतो हिस्त महत्वपूर्ण पंचादिशे एकसः दिवसे भारत राष्ट्र गणतंत्र बुद्धो तस् च संविधान रचयति च मेनी भीमराम्बेडकर च अनेकानि की देशानि च संविधान लायन्ति हम कुर्वन्ति देश च भवति। हम ही गौरवान्वित महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस मेनी बहुतानि च देशस आत्मबलम कुर्वन्ति देशस रानी लक्ष्मीबाई रानी वीर सपूतानि भारतस गौरवान्वित देशस ही बहुत विभादानि ही राष्ट्रपति भारतीय सेना चित्र जलस वायुसेना विवादानि करोति ततो पूर्व राष्ट्रपति विभिन्न सैनिकों विशेष राष्ट्र पदकानि सेनानि राष्ट्रोभित अस्पोन साकन च शोभायात्रा भवति यम शोभाया लक्षो सो मार्ग भवति च देशस इयं कुर्वन्ति। आजकम देश बहुत सर्वसौहृदानि च आत्मबलम च संवेद पुराणम अपना इयं सौहृदानि भारतपूर्वक देशस च इयं सौहृदानि अवकाशनो भवति च राष्ट्र सत नमनः च महापुरुषः भारतस् च देव इयं कुर्वन्ति। इट्स अस्मिन् आसो अस्तु हिमालयम आद्वारकम च खिलने संस्कृति औद्योगिकानि चौपी शोभायात्रा भवति वैविधानि भारतीय लोक जीवनम तत्रे वयम दुष्टम परायणम प्रतिवर्ष मेनाति शोभायात्रम भवति मरणोत्तरति अतः ए महति सो भारत नृत्य पूर्णतः एव च प्राचीन व नूतन निकटतम सुंदरम शोभायां भवति आवम गौरवम देशस्य च हिमालय शिमला काशी बहुतानि च देश सर्व गौरवान्वित भारतीय देव
राष्ट्र सेवार्थ च प्रयति अक्षुं च भारतीय गणतंत्रम जनगण हृदय नित्यं कर्णी सौखितानि प्रतिमादनी नान्यो भवतु अस्य देश एव स्वतंत्रता। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस दिन हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, यानी कि और हम लोग 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को मनाए थे और 26 जनवरी को लागू किए थे 10:18 पे। और उसी के 6 मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शपथ लिए थे और इस दिन हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस एक पर्व नहीं बल्कि एक मान्यता और गर्व का एक निशानी है। और हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने इस दिन को मनाए हैं, जैसे गांधी जी हम लोग को पूरे आज़ाद किए हैं और अंग्रेज़ों ने हम पर बहुत दुर् अत्याचार किया था, इसलिए गांधी जी हम लोग को पूरे आज़ादी से बचाए है। और हम बोलना चाह रहे, भारत माता जिंदाबाद।